Hi everyone, so welcome to the series of solution chapter. So in this video we will try to decode Vento factor. So before going to the chapter, I guess last वाले जितने भी videos होंगे वो आप देखे होंगे, starting from molarity normality till vapor pressure colligative properties, all the colligative properties were there. After this we will start Vento factor, and the last video will be about pressure of gas in liquid. So that will be the last video. So in this video we will talk about Vento factor. Now before going to Vento factor, let's understand अभी तक हमने क्या किया. अभी तक हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा या तो वेपर प्रेशर पढ़ा या कुछ भी पढ़ा, दैट इज दोज आर फॉर सॉल्यूशंस, राइट. सॉल्यूशन किसका सॉल्यूशन? Those are solutions of non-volatile solute, right? Non-volatile solute. One more thing, suppose यहाँ तक हमने सुगर ये सब solution लिया है, right? सुगर का solution ये सब. So these are non-electrolyte, right? You know it. These are non-electrolyte. Non-electrolyte. So if I talk about sugar solution, that is a non-electrolyte solution. In this case, what are the four colligative properties? Let's write this one by one. So first colligative property will be RLVP. I guess you remember, right? RLVP, relative lowering of vapor pressure. Okay, relative lowering of vapor pressure. What was the formula for this? P naught minus P by P naught will be equals to X, which is nothing but the mole fraction of solute. Mole fraction of solute. And the second colligative property was boiling point, right? Elevation of boiling point. And the formula was delta TB equals to KB into M. M stands for molality, right? And the third one was depression of freezing point, right? That was delta TF, which is equals to KF into M. And these two are quite same, right? And the fourth one was osmotic pressure, and the formula was pi equals to mRT, or you can write CRT. So it will be pi equals to mRT. What is M? M is the molarity, concentration in terms of molarity. So can you see the difference? Here it is small m, it is capital M. That is molality stands for small m, and capital M stands for molarity. Now these are the colligative properties for non-electrolyte. As for example, sugar, यूरिया, जो अभी तक हमने देखे हैं लास्ट कुछ वीडियोस में कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के लिए क्या क्या होते हैं. बट व्हाट इफ आई टेक एन इलेक्ट्रोलाइट, एज फॉर एग्जांपल इफ आई टेक सोडियम क्लोराइड. सपोज इफ आई टेक सोडियम क्लोराइड, ठीक है. सपोज मैंने एक बिकर में सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, एंड सपोज आई हैव टेकन 5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. 5 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. नो क्या होगा, मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करवाया, एंड आई हैव सीन दैट कि फाइनली जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज, मतलब वेपर प्रेशर का जो डिप्रेशन आया, दैट इज RLVP, वो ना डबल आ गया. जितना आना चाहिए था कैलकुलेटेड से ज़्यादा डबल आ गया. सपोज कैलकुलेटेड वाला जो RLVP है, कैलकुलेटेड एंड ऑब्जर्व्ड. सपोज कैलकुलेटेड में क्या आया, कैलकुलेटेड में सपोज डेल्टा TB का वैल्यू आ गया 0.81 Kelvin. Suppose delta TB, that is change in boiling point due to addition of some electrolyte, like due to addition of some solute, it came as 0.81 Kelvin. But observed में क्या आया, ये तो कैलकुलेशन आया ऑन पेन पेपर. नो ऑब्जर्व पे सपोज आ गया इसका डबल आ गया, डबल और ट्रिपल. वाई? दैट इज द क्वेश्चन बिहाइंड दिस वेंटो फैक्टर. ये डबल क्यों आया? क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलाइट यूज किया, और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड will get dissociated inside the solution to form sodium plus Cl minus. पहले क्या होता था, सुगर के लिए इतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. अभी क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड के लिए इतना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होना चाहिए, बट वो तो डिसोसिएट हो गया. किसमें? सोडियम प्लस में, क्लोरीन माइनस में. नाउ ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सेम आ गया सोडियम प्लस के पास, ये सेम आ गया क्लोरीन माइनस के पास. सो अल्टीमेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाज डबल. इसीलिए सो इसको बोलते हैं वेंटो फैक्टर. लेट्स सी व्हाट इज वेंटो फैक्टर. सो वेंटो फैक्टर इज डिनोटेड बाय I, small I. नाउ व्हाट इज वेंटो फैक्टर? It is a ratio. So in the numerator we have to write number of moles of solute
number of moles of solute after dissociation. आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ व्हाट? सपोज सोडियम क्लोराइड. अभी सुगर का तो डिसोसिएशन नहीं होगा बिकॉज सुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, बट व्हाट इफ आई टेक सोडियम क्लोराइड, देन उसका हो जाएगा डिसोसिएशन, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. एसोसिएशन किसका है बाद में देखेंगे. एसोसिएशन ओवर डिनोमिनेटर में क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेम सोल्यूट बिफोर डिसोसिएशन, before dissociation or association, dissociation or association. This is called Van't Hoff factor. So Van't Hoff factor क्या हुआ? The change in the number of moles of solute after dissociation or association over number of moles of solute before dissociation or before association. So let's talk about the dissociation. डिसोसिएशन में क्या क्या आएगा? फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज आई एम टेकिंग सोडियम क्लोराइड. लेट्स से सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट होकर क्या बनता है? सोडियम प्लस क्लोरीन माइनस. ये तो सबको पता है, सोडियम प्लस Cl माइनस. नाउ लेट्स फाइंड आउट I. क्या था न्यूमरेटर में? जस्ट लुक एट द फॉर्मूला. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन. यहाँ पे हुआ क्या? डिसोसिएशन. सो आफ्टर डिसोसिएशन कितना बना? 1 2. So it will be 2 over number of moles of solute before dissociation or association, that will be एक ही था, so it will be 1. So I will be 2. So in this case I, that is Van't Hoff factor, will be 2. Now let's talk about some association. Suppose मेरे पास है एसिटिक एसिड. मैंने क्या किया? 2 मोल एसिटिक एसिड लिया, 2 moles of acetic acid I have taken. यहां से क्या बना? ये 2 मोल एसिटिक एसिड मिलके एक डाइमर फॉर्मेशन किया. डाइमर, दैट इज दिस CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पे होगा CH3 C OH एंड डबल बॉन्ड O. ये हो गया डाइमर. इसको हम बोलते हैं डाइमर. व्हाई दिस डाइमर? बिकॉज यहाँ पे क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सो दिस इज कॉल्ड डाइमर. दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल अल्टीमेटली एसोसिएशन होके एक मोल डाइमर बना. दिस इज कॉल्ड डाइमर. नो इन दिस केस इफ आई ट्राई टू फाइंड आउट I, क्या होगा? ट्राई टू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व ऑन योर सेल्फ, देन ये देख लेना. सो अगर I का मैं कैलकुलेशन करना चाहूँ तो क्या होगा? लेट्स गो बैक टू द फॉर्मूला. क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. हुआ क्या? एसोसिएशन, राइट? एसोसिएशन के बाद कितना मोल्स है? 1 मोल्स, जस्ट द डाइमर, राइट? 1 बाय बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन कितना था? 2. 1 2. सो इट विल बी 2. 1 over 2, that will be 0.5. So in this case I का वैल्यू हो गया हाफ. डिसोसिएशन में कितना था I का वैल्यू? डबल. इसीलिए कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट ले लूं तो वो डबल हो जाता है अगर वो डिसोसिएशन में जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम मोर डिसोसिएशंस. लेट्स से okay, now one more thing is that degree of dissociation. Can you relate this to the ionic equilibrium chapter? I guess you can, right? Ionic equilibrium में भी degree of dissociation था. What is that degree of dissociation? मतलब मैं अगर 1 मोल कोई भी कंपाउंड लो उसका डिसोसिएशन कितना परसेंटेज हुआ. ऐसा तो नहीं है ना कि 1 मोल लो तो 1 मोल का पूरी डिसोसिएशन हो जाएगा 100%. इट्स नॉट लाइक ये नहीं भी हो सकता है. सो अगर मैं 1 मोल लो कोई भी सब्सटेंस, सपोज उसका 50% डिसोसिएशन हुआ या तो 30% डिसोसिएशन हुआ, वो है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड इट इज डिनोटेड बाय, सबको पता है, अल्फा, राइट? आयनिक इक्विलिब्रियम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा. नाउ सपोज आई हैव मैग्नीशियम क्लोराइड. डिसोसिएट होके क्या बनेगा? Mg2 plus 2Cl minus. This is called dissociation, right? मैग्नीशियम क्लोराइड का डिसोसिएशन. नाउ एट इनिशियल पॉइंट, मतलब जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ, तब सपोज मेरे पास 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड था, 1 मोल मैग्नीशियम क्लोराइड. फिर मैग्नीशियम 2 प्लस कितना होगा? क्योंकि ये इनिशियल था, मतलब तब रिएक्शन स्टार्ट हुआ ही नहीं, कंप्लीटली मैग्नीशियम क्लोराइड था, तो मैग्नीशियम 2 प्लस क्या बनेगा? 0, बिकॉज दैट इज इनिशियल. ओके, 0.
बिकॉज तब तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद सपोज रिएक्शन स्टार्ट हो गया और आफ्टर सम टाइम और वी कैन से एट इक्विलिब्रियम क्या होगा ये, सपोज इसका अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हो गया, पहले कितना था, पहले 1 मोल था, अभी अल्फा परसेंटेज इसका डिसोसिएशन हो गया, किसका, मैग्नीशियम क्लोराइड का, तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा, इतना मोल बचेगा अभी क्योंकि अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया। नाउ सी, अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो मैग्नीशियम 2 प्लस कितना बनेगा, अल्फा बनेगा, क्योंकि इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इसका अल्फा बनेगा। अगर इसका अल्फा डिसोसिएट हुआ तो इसका कितना बनेगा, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 1 मोल से 2 मोल बन रहा है, तो अल्फा से कितना मोल बनेगा, 2 अल्फा। ओके, दैट मीन्स अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ मैग्नीशियम क्लोराइड से, एग्जैक्टली अल्फा मोल बना मैग्नीशियम 2 प्लस का और एग्जैक्टली 2 अल्फा मोल बना क्लोरीन का, बिकॉज 1 मोल से 2 मोल क्लोरीन बन रहा है। दैट्स इट। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आई। नाउ अगेन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन, देन यू कैन से दिस। ओके, आई क्या होगा, अगेन गो टू द फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। क्या हुआ यहाँ पे, डिसोसिएशन हुआ, सो डिसोसिएशन के बाद कितना हुआ, टोटल मोल्स। अच्छा, डिसोसिएशन के बाद देखो ये भी है, ये भी है और ये भी तो है ना, ये भी तो बचा है, क्या बचा है, मैग्नीशियम क्लोराइड जो डिसोसिएट नहीं हुआ, अनडिसोसिएटेड, वो भी तो पड़ा हुआ है बीकर में। सो सबको प्लस कर दो, 1 माइनस अल्फा प्लस इसका अल्फा प्लस इसका 2 अल्फा बाय बिफोर डिसोसिएशन क्या था, 1, इनिशियल पॉइंट पे क्या था, 1, सो यहाँ पे होगा 1, सो ये बनेगा अल्फा अल्फा क्रॉस हो गया, 1 प्लस 2 अल्फा, ये हो गया आई का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नाउ यू कैन आस्क सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की क्या जरूरत है, ये तो मैंने ऐसे निकाल सकता हूँ ना, अल्फा का वैल्यू 0.5, 1, 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किस लिए चाहिए। इन दिस केस कुछ केसों में क्या होता है कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं होता, 100% डिसोसिएशन नहीं होता, होता कितना है, 30%, 20%, 25%। इन दिस केस वी नीड अल्फा। सपोज कोई भी क्वेश्चन है जिसमें अल्फा का वैल्यू दिया है 25% डिसोसिएशन हुआ है, दिस इज गिवन, सो अल्फा का वैल्यू कितना होगा, 25/100, दैट विल बी 0.25। ओके, इन दिस केस यू विल सॉल्व न्यूमेरिकल्स। ओके, सो दिस इज अल्फा। नाउ कोई भी रैंडम इक्वेशन इक्वेशन ले लेते हैं, सपोज ए एन, एक कोई भी कंपाउंड है ए एन, दैट मीन्स ये टोटल कंपाउंड है, ए एन क्लस्टर है, यहां से मैंने डिसोसिएट करवाया, क्या बनेगा, एन टाइम्स ए, मतलब ये जो क्लस्टर था ए का, ए ए ए ए ऐसे क्लस्टर था, क्लस्टर को मैंने तोड़ दिया और वो जो ए ए ए ए था ना, सब ए को अलग कर दिया, क्या होगा, एन टाइम्स ए हो जाएगा, एन नंबर ऑफ ए हो जाएगा, राइट, सो एन ए। अगेन वी विल डू एट इनिशियल पॉइंट पे क्या होगा, 1 मोल इसका है, इसका कितना होगा, 0, क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ। फिर इक्विलिब्रियम, दैट इज आफ्टर सम टाइम, इक्विलिब्रियम पे कितना होगा, इसका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, राइट, इसका हो जाएगा 1 माइनस अल्फा। क्यों अल्फा, क्योंकि अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ, किसका, ए एन का, इसका डिसोसिएशन अल्फा अमाउंट हुआ, बना कितना, देखो 1 मोल से n मोल बन रहा है, राइट, 1 मोल ए एन का क्लस्टर टूट के n मोल्स ए बन रहा है, दैट मीन्स अल्फा मोल से कितना बनेगा, n अल्फा, सो इट विल बी n अल्फा। नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आई का वैल्यू क्या होगा इन दिस केस, टोटल मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, कितना है टोटल मोल्स, ये भी है, ये भी है, दोनों ही तो है ना सोल्यूशन में, सो 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा बाय बिफोर डिसोसिएशन कितना था, 1, 1, सो ये हो जाएगा 1, इसको कॉमन ले लो अल्फा को, सो ये हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, सो आई इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, देयरफॉर अल्फा का वैल्यू कैसे निकलेगा, i माइनस 1 बाई n माइनस 1, सो दिस विल बी द फॉर्मूला for finding degree of dissociation. Now if you know the value of I, that is Van't Hoff factor, you can find out alpha, or vice versa, you can do the same for alpha, right? So alpha and I are interrelated and you can solve this by this formula. So this is all about your dissociation. समझ में आया, अगर मैं कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले लूँ तो डिसोसिएट हो जाता है या तो एसोसिएट हो जाता है, सो डिसोसिएशन अगर होगा तो ये होगा केस, आई ऐसे फाइंड आउट करते हैं। नाउ आई कैन डू द सेम फॉर एसोसिएशन एज वेल, लेट्स सी एसोसिएशन। देखो डिसोसिएशन में क्या हुआ, ए एन दैट इज अ क्लस्टर, सपोज ये ए है, ए का एक क्लस्टर है, कोई भी ये ए का क्लस्टर है ऐसे,
ऐसे ए का कोई क्लस्टर है, ठीक है, कितने सारे ए है, इतने सारे ए है, मैं इसको तोड़ दिया, तोड़ के अलग अलग कर दिया तो क्या हो गया, n टाइम्स ए बनेगा, n नंबर्स ऑफ ए बन जाएगा, ठीक है। सेम अगर मैं उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा, अगर मैं उल्टा कर दूं रिएक्शन को, दैट इज एन ए, यहां से मैंने ए ऐड कर दिया, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिसोसिएशन विच इज एसोसिएशन, राइट। ये हो गया एसोसिएशन, पहले क्या था डिसोसिएशन, मैंने डिसोसिएट किया, अभी क्या है एसोसिएशन, सो दिस इज कॉल्ड एसोसिएशन, एसोसिएशन, ओके। सेम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, इनिशियल क्या होगा, इनिशियल इनिशियल होगा ये 1 मोल, ये 0 मोल, क्योंकि स्टार्ट होने से पहले, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले कितना था 1 मोल, सपोज 1 मोल था। अच्छा, एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम कितना डिक्रीज होगा इसका, इसका सपोज अल्फा अमाउंट डिक्रीज हो गया, कितना बचा 1 माइनस अल्फा। अगर इसका अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया तो इसका कितना बनेगा, नाउ सी, इसका n मोल से, इसका n मोल से इसका 1 मोल बन रहा था, राइट, n मोल से 1 मोल, अगर n मोल एसोसिएट हुआ तो 1 मोल बना, अगर अल्फा मोल एसोसिएट हुआ तो क्या बनेगा, लास्ट टाइम क्या हो रहा था, लुक, अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ यहां से, कितना बना n अल्फा, अभी क्या होगा, अल्फा मोल एसोसिएट हुआ तो क्या बनेगा, अल्फा बाय n। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड, वीडियो को फिर से थोड़ा सा रिज्यूम कर सकते हैं यहाँ से, इसके पहले लास्ट स्लाइड से, यू विल अंडरस्टैंड। देयरफॉर आई का वैल्यू क्या होगा फिर से, अच्छा यहाँ पे अल्फा के जगह हम बीटा भी ले सकते हैं, बीटा भी ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये एसोसिएशन का है, सो यू कैन टेक बीटा एज वेल, बीटा, व्हाट इज बीटा, बीटा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएशन, ठीक है, it is not dissociation, it is degree of association. Now what will be beta, the same formula, number of moles of solute after dissociation or association, यहाँ पे क्या हुआ association, total number of moles क्या है, ये भी है ये भी है, दोनों ही तो है, so ये बनेगा 1 माइनस बीटा, ये बनेगा बीटा बाई n, बाय इनिशियल मोल दैट इज 1 1, so ये हो जाएगा 1 प्लस बीटा कॉमन ले लो, it will be 1 by n minus 1. So I equals to this. Can I find out beta from this? Yes. Beta will be I minus 1 by n minus 1. ये हो गया बीटा का फॉर्मूला, ठीक है। पहले हमने कैलकुलेट किया अल्फा का फॉर्मूला, अभी बीटा का फॉर्मूला। अल्फा का फॉर्मूला क्या था, I minus 1 by n minus 1। यहाँ पे क्या है, I minus 1 by n minus 1, जस्ट n का रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। सो अगर मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, एज फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, पोटाशियम क्लोराइड है, या तो कुछ भी है, सोडियम ब्रोमाइड है, या तो इवन ये भी है K4 FeCN6, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें भी देखो 4 टाइम्स पोटाशियम अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा, तो इनका क्या होगा, इन सबका डिसोसिएशन हो जाएगा, इन सबका हो जाएगा डिसोसिएशन। बट सपोज मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, एसिटिक एसिड, फिर मेरे पास है बेंजोइक एसिड C6H5COOH, बेंजोइक एसिड, इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक है, एसिटिक एसिड फिर बेंजोइक एसिड, ये सब अगर होगा तो इनका हो जाएगा एसोसिएशन, इसका हुआ डिसोसिएशन, इसका होगा एसोसिएशन, एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, I equals to alpha equals to I minus 1 by n minus 1, go back and you will see, इस केस में क्या होगा, बीटा which is I minus 1 by n minus 1, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नाउ द थिंग इज, सपोज मेरे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे सुगर, सुगर में क्या ऐसा डिसोसिएशन होगा, नहीं होगा, तो सुगर में अगर नहीं होगा ऐसा डिसोसिएशन तो फिर क्या होगा, जैसा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेम रहेगा। बट व्हाट अबाउट दिस इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन हो रहा है, और अगर हो गया तो चेंज भी हो जाएगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कैसे चेंज होगा, वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, न्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज।
दैट मीन्स पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे एंड दिस विल बी द मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. नंबर 1, RLVP. पहले क्या था? पहले था P नॉट माइनस P बाई P नॉट इक्वल्स टू X2, राइट? X2, 2 फॉर सोल्यूट, 2 स्टैंड्स फॉर सोल्यूट. हमेशा 1 होता है सॉल्वेंट, 2 होता है सोल्यूट. बट क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम पढ़ रहे हैं, that's why we have to modify this and we have to include I, that is Vento factor. I लगा दो, Vento factor, I का value you can find out, right? Number 2, boiling point क्या होगा? Delta TB equals to KB into M. M stands for molality. But यहाँ पे new colligative properties for electrolytes. In this case we have to put R. ठीक है? Number 3, डेल्टा टी एफ, यहाँ पे भी आई लग जाएगा, आई इंटू के बी, सॉरी के एफ इंटू एम. एंड फोर्थ में क्या लगेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई. पाई इक्वल्स टू आई इंटू एम आर टी. देखो सब में आई लगा दिया, आई, दैट इज वेंटो फैक्टर, राइट? सो यहाँ पे लिख देता हूँ, दीज आर फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स, अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होगा जो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन में टेक पार्ट करेगा, तो पार्टिसिपेट करेगा, उसके लिए we can use this new colligative properties. And wherever non-electrolytes are there, we have to use the normal, very normal colligative properties, that is without this i's, right? So ये I हो गया Van't Hoff factor, and this is all about your electrolyte solution. Just go through this once again, and इसके बाद last Henry's law and pressure का video आएगा. This chapter will be ended. Okay, thank you so much for watching this video.